کورونا کے بڑھتے کیسز این سی او سی نے 24 اضلاع میں 4 سے 12 ستمبر تک تعلیمی ادارے، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند، انڈور جمز اور ہر قسم کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ ان اضلاع میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، میانوالی، بھکر سمیت دیگر شامل ہیں۔ کورونا کا خطرناک پھیلاؤ، وائرس مزید 57 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں 3787 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.3% رہی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال میں ملازمین کی کرپشن، کورونا ویکسینیشن فارم کے عوض 50 روپے وصول کرنے لگے۔ انتظامیہ نے کارروائی کی بجائے چپ ساتھ لی۔ محکمہ ریلوے کی غفلت، اوسطا محمد تا جیکب آباد لاڑکانہ سیکشن پر جاری ریل سروس بند، لاکھوں افراد ریل کی سستی اور محفوظ سواری سے محروم۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار کھول دیا گیا۔ زائرین کے لیے ماسک پہننا لازم قرار، انتظامیہ نے سماجی فاصلے کی پابندی بھی ضروری قرار دے دی۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، کوہاٹ کے علاقہ جواکی بانڈا میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، 2 افراد قتل جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے۔ دیپال پور کے نوائی علاقے فخر ٹاؤن میں خاتون کے قتل کی لرزہ خیز واردات، سسرالیوں نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تحقیقات کا آغاز، وزیر آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان قتل۔ تیز رفتار قیمتی جانیں نگل گئی، شاہکوٹ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 3 مسافر موت کے منہ میں چلے گئے۔ تبدیلی کی گونج بنوں کے پہاڑی علاقوں تک نہ پہنچ سکی۔ جہانگیر لکی کے پرائمری اسکول کی چھت اور دیواریں خستہ حال، مستقبل کے معماروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، انتظامیہ بے خبر۔ سندھ کے شہر گمبٹ کے نواحی علاقے کا واحد سرکاری گرلز اسکول بند، طلباء تعلیم سے منہ موڑنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ مظفر گڑھ میں مٹی سے بھری ٹرالیوں نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی، اڑتی گرد و غبار سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا دشوار، انتظامیہ لاپتہ۔ عارف والا میں مونسون شجرکاری مہم تو جاری، محکمہ جنگلات نے شجرکاری مہم کے دوران نہروں کے کناروں کو نظر انداز کر دیا۔ قدرت مہربان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، مرید کے فاروق آباد، فورٹ عباس اور بورے والا میں جل تھلے، گرمی کی چھٹی، موسم خوشگوار۔ شہداء اور غازیوں کو سلام، کوٹ رادھا کرشن کے نظر سپود شہید حوالدار محمد عمران نے مادر وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بیٹے کی شہادت پر والدین کا سر آج بھی فخر سے بلند۔
अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। दुआ है रब करीम आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मामूली तनाज़े पर गोलियाँ चल गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। कोहाट के इलाका जवाकी भांडा में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 2 अफराद कत्ल जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। स्वाबी की नवाई गांव में फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। चारसदा के इलाका तंगी में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील पिनियाला में फायरिंग से एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया। दीपालपुर के नवाई इलाके फखर टाउन में खातून के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई। ससुरालियों ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीराबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला बनू के इलाके जहांगीर लकी में प्राइमरी स्कूल की छत और दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। महकमा तालीम और जिले इंतजामिया सूरत हाल से बेखबर है। सलमान खान की रिपोर्ट। सूबाई हुकूमत के तलीमी इमरजेंसी के दावे। बन्नू के इलाका जहांगीर ककी में प्राइमरी स्कूल की अहले इलाका ने महकमा एजुकेशन जिले इंतजामिया की तवज्जो स्कूल के हालात ज़ार से मुतल्लिक आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। जहांगीर ककी इलाका ककी का ये एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ के मनाजिर आपने देखे। तकरीबन ये पूरा बिल्डिंग खस्ता हाल है, कब भी गिर सकता है और कोई बड़े जानी नुकसान का खदशा हो सकता है। स्कूल के टीचरान और मालिकान बार बार डीओ एडीओ ज़िली इंतज़ामिया सबों के साथ रब्ता कर चुके हैं, दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं। टीचर्स कमरा गिरने के पेश नज़र बच्चों को सख्त गर्मी के बावजूद सहन में बिठाने पर मजबूर, जबकि 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल के 2 कमरे मुकम्मल डैमेज से किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी, बनू। सिंध के शहर गंबट में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। तालीम को सोना जेवर कहा जाता है। गंबट के महला सुखवान के इलाके मकीन अपनी बेटियों को ऐसा जेवर देना चाहते हैं, मगर इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुश्किलात में पड़ गए हैं। मुतासर इलाका मकीनों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि तहसील गंबट के मोहल्ला सुखवान गर्ल स्कूल जो 30 साल से बंद पड़ा है, जबकि सारा स्टाफ घर बैठे तनख्वाहें ले रहा है। मोहल्ले की सारी बच्चियां तालीम से महरूम हो गई हैं। हम आला इदारों से अपील करते हैं कि इसका जल्द से नोटिस लिया जाए, मोहल्ले की बच्चियां तालीम हासिल कर सकें। गर्ल्स स्कूल सरकारी कागजी कार्रवाई में देखा तो गया है, मगर कई अरसे गुजर चुका है, स्कूल बंद पड़ा है। मकीनों की बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले और बंद हुए गर्ल्स स्कूल को खोलने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी, गंबट। आरिफवाला में वापडा हुकाम की नाअहलियाँ बरकरार हैं। हटका कॉलोनी में बिजली के खंभे न होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला के मोहल्ला टिक्का कॉलोनी में वापडा की अदम दिलचस्पी की वजह से बिजली के पोल ना लगाने से सड़कों और गलियों में बिजली के तारों के जाल बिछे पड़े हैं, जो कि किसी भी लम्हे जानी नुकसान का बायस बन सकते हैं। लोगों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, ये गुजारिश है कि टिक्का कॉलोनी का ख्याल करें। ये जो लमकते हुए खंभे, ये जो मीटर हैं, ये जो तारे हैं, ये जो है ठीक करवाई जाएँ। ठीक है, हमारी एमपीए से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम जो है ना शुरू करवाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं। हम टिक्का कॉलोनी से बोल रहे हैं। ये गरीबों की कॉलोनी है। यहाँ जो तारें लगाई गई हैं बिजली की, उनका निज़ाम बहुत ख़राब है। गलियों में खंभे नहीं हैं, हज़ार 2,000 फुट की तारें लगी हैं और वो रक्षों से, लोहे के रक्षों के साथ अड़ती हैं और बच्चों से करंट लगता है। इनका कहना है कि वापडा हुकाम को कई दफा दरखास्त भी गुजारी, लेकिन वापडा एहलकार के कानों में जूं तक न रेंगी। अवामी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। टिक्का कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मेहरबानी करके हमारे पोल लगवाएं। एमपीए साहब नईम इब्राहिम साहब, जिस तरह आपने सोलंग और नालियाँ हमारी कॉलोनी में लगवाई हैं, ये बिजली के पोल भी लगवाएं। हज़ार फुट लटकती तारें हमारे बच्चों के लिए खतरा है। 3-4 की डेथ भी हो चुकी है। बराए मेहरबानी बिजली के खंभे लगवाए जाएं। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला।
बलूचिस्तान के सबसे बड़े राइस इंडस्ट्रियल जोन औस्ता मोहम्मद 2 जैकबाबाद लाड़काना सेक्शन पर 7 दहाइयों से जारी रेल सर्विस बंद हो गई। लाखों अफराद रेल की सस्ती और महफूज सवारी से महरूम हो गए। चाकर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान से कबल अंग्रेज दौर में यह रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। जैकबाबाद लाड़काना वाया उस्ता मोहम्मद शहदाद कोट रेल सर्विस 6 दहाइयों तक कामयाबी से चलती रही, लेकिन बदकिस्मती से 20 साल कबल नामालूम वजूहात की बिना पर रेलवे हुकाम ने इस रूट को बंद कर दिया, जिसके नतीजे में लाखों अफराद रेल की निस्बतन सस्ती और महफूज सवारी से महरूम हो गए। रेल सर्विस की बंदिश के बाद अरबों रुपए की कीमती अराजी और रेलवे तनसीबात पर लैंड माफिया काबिज हो गई। लोगों ने दिन दहाड़े कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक उखाड़ने के बाद कोड़ियों के दामों फरोख्त कर डाली और अब सूरत हाल ये है कि लाखों अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खटारा बसों और वैगनों पर नागवार सफर करने पर मजबूर है। सितम ज़रीफ ये है कि ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए 2 अशरों से अवामी मुतालबात पर कान नहीं धरा जा रहा। राइस मिलिंग के हवाले से बलूचिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन चावल की नकल हमल के लिए रेलवे गुड्स की सहूलत से महरूम है। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दिनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। सिटारजा में कोरोना के बायस रेलवे बंद की गई थी। फरीद एक्सप्रेस और सिंध एक्सप्रेस 5 माह बाद भी बहाल न हो सकी, जिसके बायस मुसाफिर सस्ती सफरी सवारी से महरूम होकर रह गए। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। मुसाफिर मौजूद लेकिन ट्रेन गायब। सिटारजा महकमा रेलवे ने मुसाफिरों को सस्ती सवारी से महरूम करके सिर्फ एक ट्रेन तक महदूद कर दिया। कोरोना के बायस बंद होने वाले सिंध एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस 5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी ताहाल बहाल ना हो सके, जिसके वजह से अंदरूनी सिंध और पंजाब जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। कोरोना से पहले यहाँ 5 ट्रेनें रुकती थी, अब जो है सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएं। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से मुतालबा किया है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिटारजा में भी कोरोना के बाद बंद ट्रेनों को बहाल करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज़, सिटारजा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डेली वेजेस की बुनियाद पर भर्ती किए गए मुलाजमीन ने करप्शन की इंतहा कर दी। कोरोना वैक्सीनेशन फॉर्म के एवज 50 रुपए वसूल करने लगे। अहमदपुर सियाल से तसव्वुर अब्बास की रिपोर्ट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुप साध ली। अमला को सादा लो शहरियों की जेबों का सफाया करने की खुली इजाजत दे दी। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले सादा लो शहरियों से कोरोना फार्म की मद में मुबलिक 50 रुपए फी कस के हिसाब से रकम अठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ में मिट्टी लोड करने वाली ट्रालियों ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ की हदूद सलीम चौक तारकमा नूर खान रोड पर मिट्टी लोड करने वाली ट्रालियां आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। न तरपाल न पानी का छिड़काव, ट्राली के बैक गेट बंद करना भी ट्राली मालकान को गवारा नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करती इन ट्रालियों से मिट्टी गिरकर खुश्क धूल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर यही खुश्क धूल रोड पर सफर करने वालों के मुंह पे पड़ती है तो न कपड़े देखने के काबिल होते हैं न चेहरे। मिट्टी वगैरह देख रहे हैं आप, रात दिन परेशानी होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कोई इंतजामिया कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। इलाका मकीनों ने कहा कि ट्रालियों की उड़ती हुई धूल से न सिर्फ इंसान बल्कि उनके मकान और बागात भी मुतासिर हैं। हर तरफ मिट्टी मिट्टी है। इलाका मकीनों ने कहा कि इस उड़ती हुई धूल के सबब इलाका में दमा, एलर्जी और सांस की बीमारियां फैल चुकी हैं। इलाका मकीनों ने मकामी पुलिस, डीएसपी ट्रैफिक और महकमा माहौलियात से मुतालबा किया है कि ट्राली मालकान को बैक गेट बंद करने, मिट्टी के ऊपर छिड़काव करके तरपाल डालने के ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद बनाया जाए और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्राली मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जेलम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से शहरी बिलबिलावट है। खुसूसन कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा किया गया, जेलम के शहरी भी इससे परेशान है। मैं कहता हूँ अद्धो अद्धा जो इजाफा होया जनाब, अगे 800 का लेने हूँ 1800 का लेने पे। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 साल नहीं बनता। हर रोज दिन ब दिन सर इजाफा हो रहा है, जबकि हाई कमान तक इनको इल्म है। शेख रशीद साहब का एक दफ़ा खुद मैंने बयान सुना कि मेरे को इल्म है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जब आपको इल्म है तो पिछले इसकी क्यों नहीं रोकथाम आप कराते? ये तकरीबन 30 से 35% इजाफा हुआ है और इस इजाफे से ये नुकसान हुआ है कि जो लोग आगे 3 लीटर या 5 लीटर की
बॉटल लेते थे हमारे से, तो वो अभी लीटर वाली पे आ गए हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खरीदो फरोख्त में फ़र्क पड़ा है। अगर महंगाई का यही आलम रहा तो गरीब का सांस लेना भी महाल हो जाएगा। तब्दीली सरकार के वादे कब वफा होंगे ये शहरी जरूर सोचते हैं। मेलसी में महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफे से गरीब आवाम परेशानी से निढाल है। मोहम्मद शरीफ भट्टो की रिपोर्ट। बात की जाए मेलसी की तो मुल्क भर की तरह मेलसी में भी महंगाई का तूफान न थम सका। आटा, चीनी, दालें और घी समेत रोजमर्रा की 22 अशिया के मजीद महंगा होने से गरीब आदमी के साथ साथ मुतवस्सित तबके के लिए भी 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। शहरियों के साथ साथ महंगाई से दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि चीनी और घी समेत दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतों में रोज बरोज इजाफा की वजह से ग्राहकों की तरफ से बहस व तकरार में भी इजाफा हो गया है। तमाम दुकानदार बहुत परेशान बैठे हैं, ग्राहक ना होने के बराबर है। महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से ग्राहक बहुत परेशान है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में 100% से जायद इजाफा हुआ है। इसी वजह से शहरी हुकूमतें वक्त से नाला दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शरीफ, सच न्यूज, मेलसी। तांदनियावाला में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदनियावाला में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ मिसाला जात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से ही गायब हो गईं, शहरी रुल गए। तहसील तांदनियावाला और इसके कस्बात कंजवानी, गढ़फतशाह, रहमेशाह और किलियावाला में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ मुख्तलिफ मिसाला जात की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा हो चुका है। घी, चीनी, दालें, चावल, बेसन, साबन व दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आपे से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया की खामोशी और फील्ड एरिया के विजिट न करने से जखीरा अंदोजों की चांदी हो रही है, जबकि मुनाफाखोर सादा लो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनियावाला। नायक इमरान अब्बास शहीद का ताल्लुक चकवाल के कस्बा मुरीद से। इस नौजवान ने 7 अप्रैल 2013 को मीरानशाह में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। देखिए राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। सरजमीन चकवाल के नौजवानों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत की। नायक इमरान अब्बास शहीद का ताल्लुक भी चकवाल के इलाके मुरीद से है। नायक इमरान अब्बास शहीद वालदैन का इकलौता बेटा था, जिसकी शहादत पर उनकी वालदा को फ़ख्र है कि वो एक शहीद बेटे की माँ हैं। एक ही बेटा है जड़ा शहीद हो गया, तो मैं उसकी माँ वा। कभी और भी बेटे होंगे उस वतन होता है मैं कुर्बान कर देंगे। नायक इमरान अब्बास शहीद के बेटे को भी पाक आर्मी में जाने का शौक़ है और उसकी ख्वाहिश है कि वो भी अपने वालिद की तरह आर्मी में जाकर मुल्क की खिदमत करे। मेरा नाम मोहम्मद आन अब्बास है, मैं इमरान शहीद का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे अबू शहीद हैं, हो गए हैं, और मैं भी बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा और अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। नायक इमरान अब्बास शहीद ने मीरानशाह में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 7 अप्रैल 2013 को जामे शहादत नोश फरमाई। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डोडियाल में हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। आसिफ अली की रिपोर्ट। डोडियाल में 25 मुहर्रम उल हराम नवासे रसूल ताजदार इमामत के चौथे सकून हज़रत इमाम सज्जाद सैयदुस साजिदीन की शहादत के सिलसिले में मजालस और जुलूस निकाले गए। मदरसा मज़हरुल ईमान डोडियाल में इलामा अफजल हैदरी साहब ने शहादत नवासे रसूल और उसवाए मासूम पर मुफस्सल मजलिस पढ़ी। दिन भर मातमी जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी रहा, जो कि इमाम बारगाह कसर सज्जाद में मुनक्कद हुआ। अंजुमन सजादिया रजिस्टर्ड डोडियाल, जो कि इस कदीमी जुलूस और मजालिस मुनक्कद करवाती है, जगह जगह पर अज़ादारों के लिए पानी, दूध और मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात की सबीलें और लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। जुलूस के रास्तों को मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग रखा गया ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। मातमी जुलूसों के दौरान ताबूत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम सज्जाद भी बरामद किया गया, जो कि अपने मुकर्रर टाइम पर इमाम बारगाह कसर सज्जाद पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ।
कैमरा मैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज़ डुडियाल। टोबा टेक सिंह में आईजी पंजाब के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एंटी विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। आईजी पंजाब अनाम गनी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक की निगरानी में थाना सिटी में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल बनाया गया। सेल में खवातीन के मुतल्लक जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। सेल का इंचार्ज DSP बहारसन भट्टी, सुपरवाइजरी ऑफिसर इंस्पेक्टर मखदूम सफदर और इंचार्ज लेडी सब इंस्पेक्टर आबदा परवीन को मुकर्रर किया गया है। वुमेन सेल में ASI नसीन कौसर, लेडी कांस्टेबल आयशा मजीद, सिद्रा बानो और लेडी कांस्टेबल राबिया स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देंगी। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक ने बताया कि जिला भर में पहली बार तशद्दुद का शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए दादरसी मरकज बराए खवातीन कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद खवातीन के मुतल्लिक जितने भी जराइम हो रहे हैं उनकी मुअस्सर अंदाज से तफ्तीश और खवातीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। एंटी वुमेन हरासमेंट डेस्क जो है, इसका मकसद ये है कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके प्रोसेस को तेज किया जाए। वुमेन सेल में खवातीन के लिए पीने का साफ पानी और बैठने का मुनासिब इंतजाम भी किया गया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई बारे खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई। आलूदगी से पाक कपास के हसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुट्टी की क्वालिटी और मियार मुतासर होता है। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चुनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी ख़राब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़ों की बोरियों में रखें। नवीद असमत कालू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब का कहना है, महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई, ज़ख़ीरा और तरसील के लिए काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि आलाइशों से पाक कपास की चुनाई के लिए मजदूरी वज़न की बजाय साफ़ सुथरी चुनाई पर दी जाए। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइज़र और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें हर शोबे जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमन वॉक वनी की चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई थाना सिटी हाफिजाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अमन वॉक का मकसद शहरियों की जानब से हाल ही दिनों में कुरान पाक के वाक़े के बाद शहरियों में गमा गुस्सा फैलाया गया जिस पर हाफिजाबाद पुलिस की जानब से इंतहाई अच्छा किरदार पेश किया गया। कुरान मजीद के नुस्खे को जलाने वाले मुलज़म को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी की जानब से फवारा चौक में DSP सदर जैगम सना और DSP ट्रैफिक पुलिस नदीम अहमद भट्ट और SHO थाना सिटी हाफिजाबाद अहद हुसैन तारड़ को फूलों के हार पहनाए गए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ का सबब बनने लगे। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों के गौल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों के गौल बच्चों और खवातीन पर हमलावर होते हैं। मुल्तान के इलाका गुलरेज कॉलोनी में भी आवारा कुत्तों ने स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला कर दिया। मौसूल होने वाली फुटेज में भी देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे गली से गुजर रहे हैं कि अचानक एक आवारा कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे खौफजदा होकर भागते हैं। एक बच्चे के हाथ में पानी की बोतल है जिसकी मदद से वो कुत्ते को भगाने की कोशिश भी करता है। खुशकिस्मती से बच्चा किसी संगीन हादसे का शिकार होने से तो बच गया, लेकिन गुज़िश्ता कई केसेस में आवारा कुत्तों के हमले से जख्मी होने वाले अपनी जान तक से हाथ धो बैठे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से आवारा कुत्तों की तलफी बारे इकदाम करने की अपील की है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कोटदू म्यूनिसिपल कमेटी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटदू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत की तरफ से नोटिस। शहरियों का रश लगने पर अमला की कमी का सामना। वैक्सीन सेंटर पर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं। गर्मी और धूप में खड़ी खवातीन को परेशानी का सामना है।
3 روز سے لائن میں لگ کر ویکسین لگنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عملہ کی کمی اور چھاؤں و پانی کی سہولیت نہ دی گئی۔ رش بڑھنے پر ویکسین لگوانے کا عمل مشکل ہو گیا۔ سویر دا 3 گھنٹے تھی گانے تک کھڑے ہیں بھائی جان، کوئی تھا دھوپ پہ پئی چھاں کوئی نہیں، اون تو بعد ساری کوئی سن دے بھی نہیں، سفارش چل دی ہے جی رہاں دے اپنا سفارش موبائل کال کرویں دے سفارش جو اندروں وینن غریبوں کو اندروں ونجانی نہ دے، دھوپ پہ گرمی ہے پانی بھی کوئی نہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ویکسینیشن سنٹر اور عملہ بڑھایا جائے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹا 2۔ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد آنے لگی۔ رپورٹ کریں گے ایاز احمد۔ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد روزانہ کی بنیاد پر ویکسین کروا رہی ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں روزانہ تقریباً 400 سے 500 لوگوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ ایس ایم او ڈاکٹر آصف امام کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں اور نارمل زندگی گزاریں۔ تلمبہ رورل ہیلتھ سینٹر میں اب تک 9000 لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کی چوتھی لہر گزشتہ 3 لہروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں۔ صحت انصاف کارڈ کے حامل افراد کو علاج معالجہ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیے ظہور دورانی کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے صحت انصاف کارڈ پروگرام کا اجرا یقیناً ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد غریبوں کو علاج معالجہ کی مفت سہولیات فراہم کرنا ہے، مگر لیگیا میں صحت انصاف کارڈ کے حامل افراد کو صحت انصاف کارڈ کے تحت رجسٹرڈ نجی اسپتالوں میں علاج معالجہ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نوائی علاقہ پیر جگی کا رہائشی ذوالفقار نامی شخص بیوی کی طبیعت بگڑنے پر نجی اسپتال لایا تو اسپتال انتظامیہ نے صحت انصاف کارڈ کے تحت علاج کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ نجی اسپتال صحت انصاف کارڈ کے تحت رجسٹرڈ بھی ہے۔ دیہڑی دار شخص نجی اسپتال کے ڈاکٹرز کی ہٹ درمی کے باعث اپنی کل جمع پونجی بیوی کے آپریشن پر خرچ کر چکا۔ متاثرہ شخص نے صحت انصاف کارڈ کی سہولت ہونے کے باوجود اسپتال انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کی رقم لیے جانے پر حکام بالا سے کارروائی کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت قلندر لال شہباز کے مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے شہمیر خان۔ سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد محکمہ اوقاف نے برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سکھی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو عام زائرین کے لیے کھول دیا۔ زیارت کے لیے زائرین عقیدت مند عاشقان قلندر بڑی تعداد میں درگاہ پر پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس وبا کی چوتھی لہر کے بعد سندھ حکومت نے 5ویں بار درگاہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو عام زائرین کے لیے مکمل طور پر بند کیا تھا، جبکہ 2 ماہ کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے عام زائرین کی زیارت سے پابندی ختم کر کے SOP کے تحت درگاہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو کھول دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے زائرین اور شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یار بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ چلو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ یہ ہمارے رزق کے بھی دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ناراض تھے ہم سے، اللہ بھی ہم سے ناراض ہے جو دنیا کے حالات ہیں۔ اگر یہ راضی ہو جائیں گے تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے گا اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے سب کے۔ درگاہ پر آنے والے زائرین کے لیے ماسک اور کرونا ویکسین کارڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ماسک کے بغیر اور عمر رسیدہ لوگوں کی درگاہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ شہمیر خان، اوٹھو، سچ ٹی وی نیوز 7 شریف۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.33% ہو گئی۔ عالمی وائرس مزید 57 پاکستانیوں کی زندگی نگل گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,775 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,79,31,365 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 26,035 جبکہ کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,71,578 ہو گئی، جن میں سے 5,606 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک 10,55,467 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,88,268 افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین دی گئی۔ اب تک کل 5,81,56,714 ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ اب تک 1,80,04,529 افراد کی مکمل ویکسین ہو چکی ہے۔ پھلوں کی نعمت سے مالا مال سندھ کی دھرتی کوٹ DG میں کھجور کے باغات خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد رمضان۔
पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब है और सूबा सिंध भी सरसब्ज और शादाबी में अपनी मिसाल आप है। ज़िला खैरपुर मिरज खजूर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और तहसील कोड़जी के इलाके जिस्कानी में ज़राअत के माहिर और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सिंध रईस गुलाम कासिम जिस्कानी के बेटे मुर्तज़ा जिस्कानी ने 5 साल पहले दुबई से खजूर के 15 अक़साम लेकर जिस्कानी में अपनी ज़मीन पर लगाए और इस साल उन बेहतरीन खजूर का फसल तैयार हो गया है, जिसकी वजह से कई अफराद को रोज़गार भी मिला और लोगों को अच्छी खजूर भी मिली और मुल्क समेत दीगर ममालिक में कारोबार हुआ। खजूर के आनर मुर्तज़ा जिस्कानी ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर हमने ये खजूर के बागात लगाए हुए हैं। इससे पहले हमारे पास जो थे वो असील के बागात थे जो हो गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रूटिंग पे आ गई हैं और बहुत अच्छे ही उसके जो है वो रिजल्ट्स मिले हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। मंडियों से मुकाबला करने के लिए नई इक़साम और नई टेक्निक ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजानुज्जन, सच न्यूज़ कोटजी। कारफवाला में मानसून शजरकारी मुहिम का सिलसिला तो जारी है, जबकि नहरें शजरकारी से महरूम हैं। महकमे जंगलात ने शजरकारी मुहिम के दौरान नहरों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। जावेद रजा की रिपोर्ट। आरिवाला में जारी मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान भी नहरें महकमा जंगलात और इंतजामिया की नज़रों से ओझल। नहरों के किनारे दरख्तों से महरूम होने के बावजूद भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा न बन सके, जबकि नहरें सहराई इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। ये पहले जो दरख्त पौधे वगैरह लगाए थे सब तो हो गए, चोरी हो चुके हैं। अब उसके बाद ना कोई पौधा लगाया है, ना कोई लगा नजर आ रहा है। ये आगे तक देखो, पीछे तक देखो, कोई किसी किस्म का भी पौधा नहीं लगा हुआ। महकमा जंगलात के मुताबिक रवां साल के अख्ताम तक आरिवाला तहसील में 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लिहाजा महकमा जंगलात को चाहिए खसूसी तवज्जो देते हुए नहरों पर भी ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए, ताकि नहरों के पुश्ते भी मजबूत हों और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब भी मुकम्मल हो सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी सिर्फ शहरों तक महदूद रह गया। देहाती इलाकों में आवाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उमर हयात की रिपोर्ट। आने वाले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। तरक्की के इस दौर में आज भी कच्चा खूह का नवाई इलाका 15 अनवार सहुआ वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम होने के साथ साथ सेवरेज सिस्टम का मसला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। सेवरेज का नाला बंद होने से गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिससे कई मकानात के गिरने का खदशा पैदा हो गया। गलियों में पानी जमा होने से लोगों का घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल हो गया। पैदल चलने के साथ साथ नमाजियों को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाना इंतहाई दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नकासी आब का मसला जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। कमालिया के नवाई इलाका जक्खड़ में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम होने के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। गुलाम अब्बास की रिपोर्ट। कमालिया तहसील म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही सामने आ गई। नवाही इलाका जक्खड़ में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी के जोहड़, सेवरेज की खुली नालियां और उनमें जमा कचरा। जक्खड़ में ये मनाजर किसी एक महल्ला के नहीं बल्कि पूरे इलाके की कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। दिन लोग बुखार, हेपेटाइटिस ऐसी मर्ज का शिकार हैं और बदबू का खदशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। राह गुजर जो भी होते हैं तंग हो रहे हैं यहाँ से और कोई भी उठाने के लिए इंतजामिया नहीं आ रही। कचरे से उठता ताफुन माहौल को भी आलूदा कर रहा है। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी को दरखास्तें दी गई, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।